اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز خواتین و حضرات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران، تیسرا پارہ، آیت نمبر 7۔ آیت مبارکہ چونکہ کافی طویل ہے، لفظی ترجمہ ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا۔ آپ سب سے پہلے دو باتوں کو ازبر کیجئے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر دو قسم کی آیات کا بیان ہے۔ قرآن پاک کی کچھ آیتیں وہ ہیں جن کو محکم کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی کچھ آیتیں وہ ہیں جن کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ محکم کا معنی ہے ایسی آیات کہ جن کا معنی مفہوم بالکل واضح ہے، جبکہ متشابہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی تو واضح ہو، معنی تو معلوم ہو، لیکن اس کی مراد واضح نہ ہو۔ اور بعض متشابہ آیات ایسی بھی ہیں کہ جن کا معنی بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ پہلو بھی بیان کر دیا گیا۔ اصل سے مراد ہے کہ ایسی آیات جن سے احکام مستنبط کیے جائیں، احکام اخذ کیے جائیں۔ صرف محکم آیتوں سے ہی قرآن پاک کے احکام لیے جا سکتے ہیں، متشابہ آیات سے احکام نہیں لیے جا سکتے۔ میں اس کو بالکل آسان کر دیتا ہوں، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر حلال حرام کا حکم ہے، جائز ناجائز کا حکم ہے، عقائد کا بیان ہے، اعمال کا بیان ہے، اخلاق کا بیان ہے۔ تو عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، یہ ساری چیزیں قرآن پاک کی محکم آیات سے لی جا سکتی ہیں۔ متشابہ آیات سے قرآن کے احکام نہیں لیے جا سکتے۔ اب آپ قرآن پاک کی ان دو قسم کی آیات کو، یعنی محکم آیات کو اور متشابہ آیات کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ اب میں اس آیت مبارکہ کے ایک ایک جملے کو باری باری بیان کروں گا اور انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ آتی چلی جائے گی۔ پہلا جملہ دیکھیے گا، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب۔ ہوا وہ الذی جو انزل نازل فرمائی، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب۔ آیت مبارکہ کے اندر علیکا آیا ہے، علیکا سے مراد ہے آپ پر، اور یہاں آپ سے مراد ہے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ وہ ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ اب یہاں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ پاک نے اپنی شان بیان فرمائی۔ پچھلی جتنی بھی آیات آئی ہیں ان کے اندر اللہ پاک اپنی قدرت کا بیان فرماتا ہے، اپنے علم کا بیان فرماتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ پاک نے اپنی ایک شان، اپنے کلام کی شان بیان فرمائی، قرآن مجید کی شان بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، منہ آیات محکمات۔ اب یہ ایک الگ جملہ ہے، اس کو سمجھ لیں آپ پہلے۔ منہ اسی سے، آیات آیات، محکمات محکم ہیں، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں۔ منہ اس کی کچھ، آیات آیتیں، محکمات محکم ہیں، یعنی جن کا معنی، مطلب، مفہوم، مراد بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے، اس کی مراد کسی پر مخفی ہی نہیں ہے، عیاں ہے، بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے والا شخص اس کے معنی کو اور اس کے مطلب کو بآسانی جان سکتا ہے۔ محکمات واضح ہے۔ اب یہ پہلی قسم کا بیان ہے، قرآن مجید کی آیتوں کی پہلی قسم کا بیان ہے، محکم آیات۔ اللہ پاک ان محکم آیتوں کی شان بیان فرماتا ہے۔ اب یہ تیسرا جملہ ہے آیت مبارکہ کا، اس کو دیکھیے گا، ہن ام الکتابی، ہن وہی، ام الکتابی کتاب کی اصل ہیں۔ وہ جو محکم آیات ہیں جن کا معنی، مطلب، مفہوم، مراد بالکل واضح ہے، وہ جو محکم آیات ہیں نا، وہ کتاب کی اصل ہیں، وہ کتاب کی جان ہیں، وہ کتاب کی روح ہیں، وہ کتاب کا مرکز و محور ہیں۔ اسی سے شریعت کے، دین کے، اسلام کے احکام اخذ کیے جاتے ہیں۔
मुस्तंबत किए जाते हैं। अब अल्लाह पाक ने आगे फिर दूसरी किस्म की आयतों को बयान फरमाया कि कुरान मजीद के अंदर कुछ आयतें जो हैं वो दूसरी किस्म की हैं। फरमाया व उखरू, और दूसरी आयतें मुतशाबिहात, मुतशाबे हैं। इन दो किस्म की आयतों के बयान के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फिर दो ग्रोहों का बयान फरमाया। अब उन दो ग्रोहों को समझिएगा, वो दो ग्रोह कौन कौन से हैं। फ़अम्मल्लज़ीना, बस वो लोग जो फ़ी में क़ुलूबिहिम, उनके दिलों, बस वो लोग जिनके दिलों में ज़ैग़ुन, कजी है, टेढ़ापन है, जिनके दिल उल्टे हो चुके हैं, जिनके दिल टेढ़े हो चुके हैं। फ़यत्तबिऊना, वो पैरवी करते हैं, मा, जो, तशाबहा, मुतशाबे हैं, मिनहु, कुरान मजीद से, इब्तिगा, तलाश है, अल फितनती, फितना अंगेजी की, वब्तिगा, और तलाश है, तावीलिही, इसकी तावील की, यानी गलत माना की। अब ये इस आयत मुबारका का 5वां जुमला है। अल्लाह पाक ने इस 5वें जुमले के अंदर एक ग्रोह का जिक्र फरमा दिया कि एक ग्रोह वो है जो इन मुतशाबिह आयात का गलत माना अखज़ करता है और इन मुतशाबिह आयात से उनकी तलाश है फितना अंगेजी की। वो इस तलाश में है कि हम कुरान मजीद की मुतशाबिह आयात से गलत माना निकाल कर लोगों के अंदर फितना फैलाएं। उनकी ख्वाहिश, उनका मकसद, उनकी आरजू, उनकी तमन्ना ये है कि हम कुरान पाक की मुतशाबिह आयात से ऐसे मानी निकालें, ऐसे मतालिब निकालें कि जिससे लोगों के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा हो जाएं, लोग इस किताब से दूर हो जाएं, लोग इस किताब को पढ़कर गुमराह हो जाएं। आप आयत मुबारका के इस 5वें जुमले पर फिर गौर फरमाएं। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ापन है, फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा, वो मुतशाबिह आयतों की पैरवी करते हैं। हालांकि पैरवी करनी चाहिए उम्मुल किताब की, मुहकम आयात की पैरवी करनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो मुहकम आयात की पैरवी करने की बजाय मुतशाबे आयतों की पैरवी शुरू कर देते हैं। मिन हुब्तिगा अल फितनती वब्तिगा अतावीली, मकसद क्या है उनका? मुतशाबे आयतों की पैरवी करके उनका मकसूद राह हक तक पहुंचना नहीं है, अल्लाह के इरफान तक पहुंचना नहीं है, अल्लाह की पहचान तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उनका मकसद ये है कि हम लोगों के अंदर फितने फैलाएं। आप देख लें, फी ज़माना बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुरान मजीद की आयतों को पढ़ते हैं, हक के फ़रोग़ के लिए नहीं, हक के इबलाग के लिए नहीं, बल्कि लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों के अंदर टेढ़ापन लाने के लिए, लोगों को राह रास्त से डगमगाने के लिए, लोगों को राह रास्त से हटाने के लिए। और असल बात यह है कि उनके अपने दिल टेढ़े हैं, उनके अपने दिल ही उल्टे हैं, वो हक के रास्ते के मुसाफिर ही नहीं हैं। वो चाहते ये हैं कि खुद भी टेढ़े रहें, खुद भी उल्टे रहें, खुद भी औंधे रहें, और जो उनके पैरोकार हैं, जो उनकी राहों पे चलने वाले हैं, वो भी टेढ़े ही रहें, वो भी उल्टे के उल्टे ही रहें, उन्हें भी कभी सही डायरेक्शन के अंदर, सही समत के अंदर सोचने की तौफीक ना मिले। अब इस आयत मुबारका के 6ठे जुमले पर गौर फरमाइएगा। वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह, और नहीं जानता इसके सही माना को बगैर अल्लाह ताला के। यानी कोई शख्स भी मुतशाबे आयतों के सही माना को जान सकता है तो अल्लाह ताला की तौफीक से ही जान सकता है, अल्लाह ताला की अता की हुई ताकत से ही जान सकता है। अब ये 6ठा जुमला मैंने बयान कर दिया, वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह। अब आगे 7वां जुमला समझिएगा। वर्रासिखून फिल इल्मी, और वो लोग जो इल्म के अंदर रासिख हैं, इल्म के अंदर पुख्ता हैं, वर्रासिखून पुख्ता हैं, फी में अल इल्मी इल्म, जो इल्म के अंदर पुख्ता लोग हैं, यकूलूना वो ये कहते हैं, आमन्ना बिही हम इस पर ईमान लाए, कुल्लुन सब का सब, मिन से, इंदी तरफ, रब्बिना हमारे रब,
आमन्ना बिही, हम ईमान लाए इस पर, कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, सब का सब हमारे रब की तरफ से ही है। मुहकम है तो वो भी हमारे रब की तरफ से है, मुतशाबे है तो वो भी हमारे रब की तरफ से है। अब आखिरी जुमला समझ लीजिए, वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत कबूल करते मगर अक्लमंद। अब यहाँ आप दो ग्रोहों को भी समझ चुके होंगे। एक ग्रोह वो है जिनके दिल टेढ़े हैं, वो खुद भी राह रास्त से हटे हुए हैं और वो दूसरों को भी राह रास्त से हटाते हैं। और दूसरा ग्रोह वो है जो इसका माना जानते हैं अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की तौफीक से, और वो कभी भी मुतशाबे आयतों को पढ़कर वो गुमराह नहीं होते। वो ना खुद गुमराह होते हैं ना दूसरों को गुमराह करते हैं। अब जो इस आयत मुबारका के 6 और 7वें जुमले की मैंने बात की, उसको ज़रा समझने की मज़ीद कोशिश कीजिएगा। वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्मी। यहाँ पर उलमाए मुफस्सिरीन के 2 अक़वाल हैं। एक कौल ये है कि इल्लल्लाह पर वक्फ किया जाएगा और फिर आगे नया जुमला होगा वर्रासिखून फिल इल्म। एक कौल ये है कि नहीं, ये वक्फ नहीं किया जाएगा बल्कि ये सारा एक ही जुमला है, यानी यहाँ से लेकर आप देखिएगा, वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाहु वर्रासिखून फिल इल्म। बाज़ उलमा इसको एक ही जुमला मानते हैं। अब इन दोनों अक़वाल को अगर हम मद्देनज़र रखें तो माने के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर इन दोनों जुमलों को अलग अलग न किया जाए, इल्लल्लाह पर वक्फ न किया जाए, तो उस सूरत में इसका माना ये बन जाएगा कि मुतशाबे आयात का सही माना अल्लाह जानता है और रासिखून फिल इल्म जानते हैं। इल्म के अंदर जो पुख्ता लोग हैं वो जानते हैं। इसका मतलब ये बन जाएगा। और अगर इल्लल्लाह पर वक्फ कर दिया जाए तो फिर इसका माना ये बन जाएगा कि इसका सही माना सिर्फ अल्लाह जानता है, बस अल्लाह के सिवा और कोई भी इसका सही माना नहीं जानता। और जो रासिखून फिल इल्म हैं वो सिर्फ ईमान लाते हैं, ये कह कर के आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना। अब हो सकता है कि ये बात समझना ज़रा आपके लिए मुश्किल हो जाए, मैं इसको बिल्कुल आसान बना देता हूँ। आप सबसे पहले मुतशाबिह आयात की मिसालें अगर आप समझ लें तो बात बड़ी आसान हो जाएगी। मुतशाबिह आयात मिसाल के तौर पर हुरूफ मुक़त्तआत, ये मुतशाबिह कहलाएंगे क्योंकि इनका माना अल्लाह और उसके रसूल के सिवा और कोई भी नहीं जानता। मुतशाबिह आयात की दूसरी मिसाल, कुरान पाक के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका सही माना, सही मुराद हम पर वाज़े नहीं है। मिसाल के तौर पर कुरान पाक के अंदर आया यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, इसी तरह वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा। तो अब यहाँ यदुल्लाह और वजहुल्लाह से क्या मुराद है, जबकि हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ताला का हाथ और अल्लाह ताला का चेहरा अगर मान लिया जाए तो अल्लाह ताला के लिए तो हम जिस्म मान बैठेंगे, जबकि अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। जब वो जिस्म से पाक है तो वो मकान से भी पाक है, वो ज़मान से भी पाक है। तो अल्लाह ताला के लिए अगर कोई शख्स जिस्म मान लेगा वो दायरा इस्लाम से ही खारिज हो जाएगा। तो अल्लाह ताला जब जिस्म से, ज़मान से, मकान से पाक है तो इस यदुल्लाह और वजहुल्लाह का हम माना क्या करेंगे। इसका माना हम ये करेंगे अल्लाह का हाथ जैसा कि उसकी शान के लायक है। हम इसकी मुराद तय कर ही नहीं सकते, तायुन नहीं कर सकते कि इससे क्या मुराद लिया जाए। अल्लाह का हाथ जैसे अल्लाह की शान है, अल्लाह का चेहरा जैसे अल्लाह की शान है, हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते। इससे अब कोई हलाल हराम का हुक्म भी वाज़े नहीं होता। हलाल हराम का इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। हमारे दीन का, हमारी शरीयत का, हमारे इस्लाम के अहकाम, जुमला अहकाम का इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। मुतशाबे आयतों की मैं तीसरी मिसाल आपको देने लगा हूँ। तीसरी मिसाल, जैसा कि अल्लाह ताला ने बहुत से मामलात ऐसे हैं जो हमारे जहनों से छुपा रखे हैं। मिसाल के तौर पर क़यामत का दिन, क़यामत कब आएगी अल्लाह पाक ने नहीं बताया। इसी तरह से आप देखें कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके सही मतलब को, सही मुराद को हम नहीं पहुंच सकते। मसलन जन्नत, दोज़ख, ये गैबी चीज़ें हैं। कौन जाने कि जन्नत क्या है। आज अगर किसी को हम दिखाना चाहें तस्वीरी शक्ल के अंदर, वीडियो की फॉर्म के अंदर कि ये है जी जन्नत, तो हम दिखा सकते हैं? नहीं।
कुछ चीज़ें बता दी गई, फल बता दिए गए कि उसके जायके दुनिया के जायकों से, दुनिया के फलों के जायकों से मिलते जुलते हैं, बस इतना बता दिया गया। लेकिन अब वो उन फलों की हकीकत क्या है, उन नेमतों की हकीकत क्या है, हम नहीं बयान कर सकते। तो ये सारे मामलात हमारी नज़रों से ओझल हैं, हमारे जहनों से वरा हैं। अल्लाह ताला की खुद अपनी ज़ात हमारे जहनों से वरा है। लफ्ज़ अल्लाह का हम सिर्फ इतना ही तसव्वुर कर सकते हैं कि इसके जो हुरूफ हैं, अलिफ, लाम, लाम और हा, जो इसके 4 हुरूफ हैं, हमें उनका तसव्वुर करना चाहिए। जब हम लफ्ज़ अल्लाह बोलते हैं तो हमारे जहन के अंदर कोई शक्ल, कोई जिस्म, कोई नहीं आना चाहिए कि माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला इस शक्ल का है, नहीं। तो ये है मुतशाबे। अब आप समझ चुके होंगे कि मुतशाबे से क्या मुराद है। मज़ीद इसको ज़रा मैं खोल दूं कि कुरान पाक के अंदर अगर ये मुतशाबे आयात रखी गई हैं और इनका माना, इनकी मुराद, अगर कोई माना तो चलें हम जान ही सकते हैं, जैसा कि यद का माना हम जान सकते हैं हाथ, वजहुन का माना हम जान सकते हैं चेहरा, लेकिन इससे मुराद क्या है वो हम नहीं जान सकते। तो जब इसकी मुराद हमें मालूम नहीं हो सकती तो अल्लाह पाक ने मुतशाबे आयात कुरान पाक के अंदर रखी ही क्यों हैं? इस शुबा का और इस एतराज़ का जवाब ये है, ये आयात भी अल्लाह ताला के कलाम की शान हैं। अल्लाह ताला के कलाम की अज़मत को ये 4 चांद लगाती हैं। रूफ़े मुक़त्ताआत हैं, सूरतों के शुरू में हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला अपने यद को, अपने वजहुन को, अपने चेहरे और हाथ को बयान तो करता है, हम क्या कहेंगे, जैसे उसकी शान के लायक है। और अल्लाह पाक ने ये आयात, जैसे कि क़यामत कब आएगी, दिन क्या होगा, वक्त क्या होगा, किस सन में क़यामत आएगी, अगरचे हदीस पाक के अंदर कुछ बातें वाज़े कर दी गई कि क़यामत जब आएगी तो वो महीना मुहर्रम का होगा और दिन 10 मुहर्रम का होगा, और दिन जो है वो जुमातुल मुबारक का होगा, और वक्त जो है वो असर की नमाज के बाद का होगा, सूरज ढलने के करीब होगा। कुछ बातें बता दी गई, लेकिन एग्जैक्ट कि कौन सा सन होगा, कितने साल बाकी रह गए हैं, अल्लाह पाक ने इसे मख्फी रखा हुआ है। तो अब जिक्र तो करना था क़यामत का अल्लाह पाक ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतशाबे आयात का सही माना अपने अंबिया को अता फरमाया बज़रिया वही। इसी तरह अल्लाह पाक ने मुतशाबे आयात का इल्म औलियाए कामिलीन को अता फरमाया बज़रिया इल्हाम। अल्लाह पाक अपने ख़ास बंदों को बज़रिया इल्हाम के ज़रिए, इल्क़ा के ज़रिए, यानी अल्लाह ताला उनके दिलों के अंदर बात डाल देता है। वही जो है वो किसी आम इंसान की तरफ नहीं आ सकती, वही सिर्फ पैगम्बरों और नबियों और रसूलों की तरफ आ सकती है। तो जो औलिया हैं उनकी तरफ इल्हाम और इल्क़ा हो सकता है। अल्लाह ताला ने मुतशाबे आयात का सही माना, सही मतलब अंबिया को भी बताया और औलियाए कामिलीन को भी बताया। अंबिया को बताया वही के ज़रिए और औलिया को बताया इल्हाम के ज़रिए। तो ये दोनों किस्म की आयात, यानी आयात मुहकमात और आयात मुतशाबिहात, ये दोनों किस्म की आयात अल्लाह ताला के कलाम की शान हैं। और अगर हमें किसी मुतशाबे आयत का सही मतलब, मुराद, मफहूम पता ना चल रहा हो तो हमें ये कह देना चाहिए आमन्ना बिही, हम इस पर ईमान लाए, कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, ये सब हमारे रब की तरफ से हैं। अब इसके बाद अल्लाह पाक ने फिर एक दुआ हमें सिखाई। अब सुनिए वो दुआ क्या है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 8 है ये। रब्बना, ए हमारे रब, ला तुज़िग़, ना टेढ़े कर, कुलूबना, हमारे दिल, बाद इज़ हदैतना, बाद इसके कि तूने हमें हिदायत अता फरमा दी, वहब, और अता फरमा, लना, हमें, मिन से, लदुन का, अपनी जनाब से, अपने पास से, रहमतन, रहमत, इन्नका, बेशक तू, अंता, तू, अल वहाब, सब कुछ बहुत ज्यादा देने वाला है। ये बड़ी प्यारी दुआ है। हमें इस दुआ को अपनी दुआओं के अंदर शामिल रखना चाहिए कि ए हमारे रब, हमारे दिलों को तू टेढ़ा ना कर। दिलों का टेढ़ा होना क्या है? दिलों का मुर्दा हो जाना है। वो शख्स के जो अल्लाह ताला के अहकाम से गाफिल हो जाए, नमाज से, रोज़े से, शरीयत से, दीन से गाफिल हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसका दिल टेढ़ा हो गया है, उसका दिल मुर्दा हो गया है। तो ईमान के नूर से अपने दिल को जिंदा रखना चाहिए।
یہاں ایک ہی بات بہت زیادہ سمجھنے کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف ہدایت کا مل جانا نعمت نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے اوپر ہمیشہ قائم رہنا اور ہدایت پر ہی موت کا آنا یہ اصل نعمت ہے۔ کیونکہ اگر کسی شخص کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا، خاتمہ ہدایت پہ نہ ہوا، خاتمہ اگر کسی کا گمراہی پہ ہو گیا، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار اختتام پر ہے۔ اگر اختتام اچھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل اچھا ہوا، اور اگر اختتام ہی اچھا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل اچھا نہیں ہوا۔ تو یہ جو ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ وہ رحمت کیا ہے جو اپنی جناب سے ہمیں عطا فرما؟ وہ رحمت ہے کہ دل ہمیشہ ہدایت پر قائم رہے، مرتے دم تک دل ایمان پر قائم رہے، اور اے ہمارے رب، بے شک تو ہی بہت زیادہ نوازنے والا ہے، سب کچھ تو ہی دینے والا ہے اور بہت زیادہ دینے والا ہے۔ آگے ایک اور دعا ہے، یہ بھی بڑی خاص دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کا اس کے اندر اظہار ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع الناس، لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم، اس دن، لا نہیں، ریب، شک، فیہ، اس میں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا نہیں، یخلف المیعاد، وعدہ خلافی کرتا، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں اس دن کو بیان کر دیا گیا جس دن کے آنے میں، جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ دعا بھی ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں کہا، دعاؤں کے اندر میسج ہوتا ہے۔ اس دعا کے اندر میسج یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی وہ دن بھولنا نہیں چاہیے جس دن سارے لوگ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، اللہ کے روبرو حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے اب یہ دعا ہمیں سکھائی، اے ہمارے رب، تو جمع کرنے والا ہے تمام انسانوں۔ جب بندہ یہ لفظ بولتا ہے تو انسان کا اندر ہل کے رہ جاتا ہے، سارے انسان وہاں جمع ہوں گے، اس دن جمع ہوں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کا وعدہ ہے کہ وہ دن آئے گا تو وہ دن آئے گا۔ کوئی شک میں مت رہے کہ پتہ نہیں وہ دن ہوگا یا پتہ نہیں وہ دن نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے دو ٹوک انداز میں ہمیں یہ دعا بھی سکھا دی اور عقیدہ بھی دے دیا کہ قیامت کے اوپر تمہارا یقین بڑا پختہ ہونا چاہیے۔ تو جس کا قیامت کے اوپر یقین پختہ ہوتا ہے اس کا دل ٹیڑھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹیڑھے دل ہمیشہ ان لوگوں کے ہوتے ہیں، مردہ دل ہمیشہ ان لوگوں کے ہوتے ہیں جن کا قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک ہوتا ہے، کوئی شبہ ہوتا ہے، ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور جن کے دل ٹیڑھے ہو جائیں وہ پھر متشابہ آیات کے غلط معنی لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کے لیے بہت مفید رہی ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس مشکل بات کو آسان بنا دوں۔ دو ہی باتیں ہیں، قرآن کی دو قسم کی آیات ہیں، محکم آیات اور متشابہ آیات۔ محکم آیات سے حلال حرام کا پتہ چلتا ہے، اور متشابہ آیات سے ہمیں حلال حرام کا کوئی حکم پتہ نہیں چلتا۔ اور متشابہ آیات کا صحیح مطلب اللہ جانتا ہے، انبیاء جانتے ہیں، اولیاء کاملین جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کے اوپر گہرا غور و خوض کرنے، اس کا معنی مطلب جاننے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔